Okay, sir. Yeah. Good evening and welcome to this lesson number two of our Vedic astrology course online, which just started yesterday. This is lesson number two, and yesterday we studied the very basics. You know how we studied how many planets there are, and then how many houses, how many rashis, etc. And then we studied, how to understand or decipher the North Indian style of horoscope or the chart. And I hope it was all clear to you. Most of you have basic knowledge. Most of you have basic knowledge already, so it wouldn't have been a problem. So again, today also thoda sa basics pari, as I told you, first 5 6 classes will be pure basics only, and I'm sure you will be out of that already, that कुछ ना कुछ आपको नया उसमें जरूर मिलेगा. तो अभी मैं फिर without wasting any further time, because this is also going to be, since basics है, I'm not going to burden you much. It will be a sort of a 1 hour class. I'll try and make it only just a 1 hour class, and it's a small exercise on what we learned yesterday, what we studied yesterday. उसको थोड़ा सा progress और बढ़ाते हुए, we'll see how much we have understood. First, we'll just do a small recap of what we did yesterday. So उसके लिए मैं एक आपके साथ screen share करने जा रहा हूँ, and वो कल वाली screen है, उसको थोड़ा सा हम recap करेंगे in about 2 3 5 minutes, and then we'll go on to the next screen. Okay, it's a small exercise on whether how much we have understood, कितना हमने समझा है, उसको हम देखते हैं. So I'll just open a screen in front of you. ये स्क्रीन आ जाएगी तो आप लोग मुझे बताएंगे it has come, so that I can. ओके, स्क्रीन आ गई है. देखिए, ये वही कल वाली स्क्रीन है. This is yesterday's screen, and just to recap, we studied this. I'll just change my cursor. Just to recap, this was the North Indian chart that we tried to understand and learn. हम लोगों ने पढ़ा था कि नॉर्थ इंडियन चार्ट में there are 12 houses. This is the first house, called the lagna in Hindi, या प्रथम भाव, पहला भाव, and ascendant or the first house in English. इसको हिंदी में हम लग्न बोलते हैं या पहला भाव बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको हम ascendant बोलते हैं या first house बोलते हैं. Then it goes like this, ये second house, ये second house आ जाता है. ये fixed है, जो भी ये this is fixed. This will always be the first house. Second, then it goes like this: third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th. ये हम लोगों ने पढ़ लिया था. I'm sure there is no confusion. If there isn't any confusion, you can ask me. Yesterday itself आप लोग समझ गए थे इसको, ठीक है. And वो मैं चलिए मूवमेंट के बारे हम बाद में समझेंगे. एंड देन लेफ्ट साइड में देखिए, वी हैड सीन दैट देयर आर 12 राशिज, और जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में जोडियक, 12 zodiac signs. Okay, they are also called rashis, and these numbers I told you, number 1, this stands for Aries. This you have to mug it up. You have to, इसको by heart आपको करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कंठस्थ करना पड़ेगा. There is no shortcut. तो number 1 जब लिखा होगा यहाँ पे, and I had also told you कि actual live horoscope में ये first house, second house, third house लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है. ये आपको
अपने दिमाग में इसका इम्प्रिंट बैठा लेना होगा. Your brain has to synchronize with this. That just by glancing at a horoscope, suppose I put the cursor here, then you should know that this is the 10th house. It comes with practice. अगर जिसने किया हुआ है, जिसको मालूम है, वो तो कर लेगा. बट जो नए हैं उसको it will take some time, to just say like this is the 11th house. Okay, this is the 5th house. वो प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा. तो ये तो भावों, ये हाउसेस कहते हैं, ये भाव कहते हैं, या घर भी कहते हैं. पहला घर, दूसरा घर. ये हमारी 12 राशियां हैं, 12 जोडियक साइंस हैं. ये नंबर 1 जहां लिखा रहेगा वो एरीज होता है या मेष है. नंबर 2 इज टॉरस, वृषभ. नंबर 3 विल बी मिथुन, जेमिनी. नंबर 4 विल बी कर्क. 5 विल बी लियो, सिंह. 6 विल बी वर्गो या कन्या. 7th will be Libra या तुला. 8th will be Scorpio, Vrishchik. 9th will be Sagittarius, Dhanu. 10 will be Capricorn. 11 will be Aquarius. 12 will be Pisces. I hope आप लोगों ने सबने ये याद कर लिया होगा, because today we are going to do a small exercise on this. Okay. और फिर तीसरा जो हमने पढ़ा था 9 planets. 9 planets के नाम हमने कहे थे आप लोगों को याद कर लेना है, एंड प्रेफरेबली इन दिस ऑर्डर. ये ऑर्डर का क्या रेलेवेंस है वो बाद में हम एज वी प्रोसीड, जब विंशोत्तरी महादशा हम पढ़ेंगे तब इसका रेलेवेंस हमको पता चलेगा. क्या रेलेवेंस है, क्यों इस ऑर्डर में याद करना है. केतु के बाद वीनस, के बाद सन, के बाद मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न एंड मरकरी. केतु को केतु बोलते हैं, वीनस को शुक्र बोलते हैं, सन इज कॉल्ड सूर्य, मून इज कॉल्ड चंद्रमा, Mars is called Mangal, Rahu is called Rahu, Jupiter is called Brihaspati or Guru also. Saturn is called Shani and Mercury is called Buddha. यहाँ लिखा है हमने, please memorize the names in this order only, as the constellations in the zodiac are also placed in this order. वो हम पढ़ेंगे constellations. अब आएगा when we start कृष्णमूर्ति पद्धति. अभी ज्यादा इम्पोर्टेंस कॉन्स्टलेशंस का नहीं है, इसीलिए हम लोग उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि we'll just be wasting time if I get into constellations for you at the moment. In any case, we have to study the constellations. नक्षत्र जिसको बोलते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं. वो हमें केपी की जब हम कोर्स करेंगे इस 2.5-3 महीने के कोर्स के बाद, तो फिर उसमें आपको डिटेल में उसमें पढ़ना ही पड़ेगा. सो अभी इसमें हमारे वैदिक के इस वेरिएंट में कॉन्स्टलेशंस का कोई बहुत ज़्यादा दखल नहीं है, उनकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हम अपना टाइम उसके ऊपर उसको याद करने में बर्बाद नहीं करेंगे. तो ये है, आई होप आपने ये 9 ग्रहों के नाम याद कर लिए होंगे. और ये भी हमने फिर समझाया था कि कैसे लग्न का क्या मतलब होता है. लग्न का मतलब होता है जब कोई बच्चा पैदा होता है, या हम लोग भी जब पैदा हुए थे, तो हमारे जहां पर भी हमारी पैदाइश हुई थी, on that given spot wherever we were born or a child is born, तो उसके ईस्टर्न होराइजन में, आप अगर अपने घर में पैदा होते हैं तो आपका जो घर का जो ईस्टर्न साइड है, वहां पर उस समय कोई एक लग्न जो है उदित हो रही होगी इन 12 लग्नों में से. See, this is nothing but the sky above us. हमारे ये जो है ना, ये हमारे सिर के ऊपर जो स्काई है, आकाश है, आकाश मंडल जो है, ठीक है, ये ब्रह्मांड कह लीजिए, आकाश मंडल कह लीजिए, यूनिवर्स कह लीजिए, सोलर सिस्टम कह लीजिए, you call it whatever you may. Okay, this is called, एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में इसको हम जोडियक बोलते हैं. तो इस 12 घर के ये हमारे ऊपर का आकाश है. तो हमारे ईस्टर्न होराइजन में पूरब के साइड में जब हमारी पैदाइश हुई, तो इन 12 लग्नों में, 12 राशियों में से कोई एक राशि उदित हो रही होगी ईस्टर्न होराइजन पे, उस राशि को हम कहते हैं लग्न. ठीक है, जो भी है वो जिस नंबर की भी है, जैसे इसमें 8 नंबर है, तो वृश्चिक लग्न में ये जातक या नेटिव जिसका हॉरोस्कोप है ये पैदा हुआ. तो अगर वो वृश्चिक में पैदा हुआ 8 नंबर में, तो इट विल फॉलो दैट नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो नंबर 2 सेकेंड हाउस जो होगा वो 9 नंबर का हो, वो सैगिटेरियस होगा. थर्ड हाउस जो है वो कैप्रिकॉर्न होगा. फोर्थ हाउस एक्वेरियस होगा.
5th हाउस पाइसिस होगा, ठीक है, 6th हाउस एरीज होगा। ये नंबर से पहचानना पड़ेगा आपको, ये प्रैक्टिस से आएगा। शुरू शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बट इट विल कम विद प्रैक्टिस, ठीक है। और ये 24 घंटे, एक लग्न, देखिए एक राशि लग्न के स्थान पर 2 घंटा रहती है। उसके बाद ये जोडियक मूव करता रहता है। कल शायद हमने गलती से आपको बता दिया था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव नहीं करता है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। 2 घंटा अगर मान लीजिए इस बच्चे की पैदाइश हुई जबकि स्कॉर्पियो लग्न उसी समय उदित हो रहा था, शुरू हुआ स्कॉर्पियो लग्न, तो तकरीबन 2 घंटे के बाद ये लग्न जो है ये शिफ्ट करके यहाँ पर आ जाएगी, और ये 9 नंबर वाली लग्न सैगिटेरियस लग्न फिर यहाँ पर आ जाएगी 2 घंटे के बाद तकरीबन। तो ये जोडियक 24 घंटे में पूरा जो है ब्रह्मांड का एक चक्कर लगाता है जोडियक। फिर 24 घंटे के बाद जो लग्न आएगी कल, अभी अगर बच्चा पैदा हुआ है 8 नंबर की लग्न है, तो अभी क्या टाइम हो रहा है, 9 बज रहा है अप्रोक्सीमेटली जो है, कल इसी समय 9 बजे फिर से ये वृश्चिक लग्न यहाँ आएगी, एंड दिस लग्न मूव्स इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। प्लैनेट्स मूव इन अ, वो हम स्टडी करेंगे, प्लैनेट्स जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये लग्न मूव्स इन अ, ये लग्न मूव करते रहती है, तभी ये लग्न चेंज होती है। अदरवाइज एवरीबडी वुड हैव बीन बोर्न इन द सेम लग्न, नो, आफ्टर एवरी 2 आवर्स द लग्न चेंजेस। कब बच्चे की पैदाइश होती है, वो कितने डिग्री पर है, वो थोड़ा एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है, वो हम पढ़ेंगे आगे वाले लेसन्स में। लेकिन ये हमारा हॉरोस्कोप है, ये जो बच्चा पैदा हुआ है इसका ये हॉरोस्कोप है, इसकी जो है लग्न वृश्चिक है, सेकंड हाउस सैगिटेरियस है, एटसेट्रा। सारा उसकी डेस्टिनी जो है इस पर डिपेंड करती है। ये 12 भाव, कौन से भाव में कौन सी राशि है, और ये 9 ग्रह कौन से ग्रह किस राशि में या किस भाव में प्लेस्ड हैं, ये इसका फ्यूचर, इसकी फ्यूचर को डिसाइड करता है, जो कि जिसकी पढ़ाई हम कर रहे हैं। दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी तो हमने आपको बताया था ना कि ठीक है, आप लोग भले बोर हो रहे होंगे, आई स्टार्ट फ्रॉम द ए ऑफ एस्ट्रोलॉजी मेरे वैदिक कोर्स में, नॉट इन केपी। मेरे वैदिक कोर्स में आई स्टार्ट द ए ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड आई फिनिश विद द वाई ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। ए टू वाई है एस्ट्रोलॉजी, जेड नहीं आया है अभी एस्ट्रोलॉजी में, बिकॉज इट इज नॉट अ कंप्लीट साइंस, दैट इज हाउ आई डिस्क्राइब इट। ए टू वाई तक हम पहुंच गए हैं, तो इसीलिए हमारे जो प्रेडिक्शंस की जो है प्रेडिक्शंस की एफिकेसी है वो करीब करीब 85 to 90% होती है। जिस दिन एस्ट्रोलॉजी जो है के बाद जेड लग जाएगा, एस्ट्रोलॉजीज हो जाएगा, उस दिन आप समझ जाइए 100% हमारे प्रेडिक्शंस करेक्ट होने लगेंगे। लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं, अभी रिसर्च चल रहा है, इट्स एन ऑन गोइंग थिंग। दैट इज व्हाई आई से आई स्टार्ट विद द ए ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड आई फिनिश विद द वाई ऑफ एस्ट्रोलॉजी। चलिए, तो ये आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इसको, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, तो हम फिर नेक्स्ट जो है ग्राफिक पर जो है हम जाते हैं, अगर इसको आप लोग समझ गए हैं। If anybody has any question, you can ask me. Otherwise, I will go to the next graphic. I'm just pausing for anybody, if anybody wants to ask me any question. किसी को इसमें कोई confusion है तो हमसे पूछ, इसको मत अभी देखिएगा। अब ये चूंकि मेरे कॉमन ग्राफिक्स होते हैं, जब मैं केपी पढ़ाऊंगा अगेन आई प्रेजेंट द सेम ग्राफिक, क्योंकि उसमें फिर हम साउथ इंडियन चार्ट से पढ़ते हैं, इसीलिए मैं बना करके रेडी रखता हूँ। ये मटेरियल कुछ कॉमन मटेरियल है हमारे वैदिक के और एस्ट्रोलॉजी ये केपी के कोर्स में, इसी के लिए ये साउथ इंडियन चार्ट बनाया हुआ है। अभी हम नॉर्थ इंडियन चार्ट पे फिलहाल जो है ना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। Then should I go to the next graphic then, please? Yes, sir. Okay. आ जाएगा तो बताइएगा प्लीज। Yeah. Has it come? Yeah. Okay. Now look, now this is a small exercise that we are going to undertake, okay?
कि आप लोगों ने सब तो समझ ही लिया होगा। मुझे लगता है ये अगेन साउथ इंडियन चार्ट, डोंट बॉदर अबाउट दिस, वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग हियर। दिस इज अ ब्लैंक चार्ट, ब्लैंक नॉर्थ इंडियन चार्ट। तो ये क्या है, एक्सरसाइज लेसन 2 है, प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स इन द हॉरोस्कोप। हम कैसे प्लैनेट्स और राशिज को प्लेस करेंगे हॉरोस्कोप में। हमारे पास सपोज अभी तो देखिए कंप्यूटर आ गया है, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बट एज एन एस्ट्रोलॉजी यू शुड नो। तो दी ये पर्टिकुलर्स जो है ना, दिस इज particular the birth particulars of any person. Say date of birth is 7/5/1953, time of birth है 5:52 AM, place of birth है कोलकाता। तो इनकी पैदाइश इस समय हुई थी। तो इनकी जब पैदाइश हुई थी तो देखिए यहाँ हमने मेंशन कर दिया है ascendant was Taurus, ascendant was Taurus at 5 degrees 5 degrees 49 minutes. Don't bother about this degrees for the moment, don't bother about it. ये देना जरूरी थोड़ा खाली ascendant के लिए होता है, इसलिए हमने लिख दिया है। इसमें अभी आपको इस डिग्रीज के बारे में आपको तवज्जो नहीं देना है। तो अब आप मुझे बताइए कि कैसे, हाउ टू स्टार्ट पॉपुलेटिंग दिस चार्ट। मैं कैसे, हाउ शुड आई गो अबाउट पॉपुलेटिंग दिस चार्ट। मैं कौन सा नंबर क्या चीज कहाँ लिखूंगा, बताइए मुझे, एनी वन ऑफ यू। Number 2 Taurus in the first diamond. Okay. यहाँ, here you mean, I'll just change the cursor. You mean here, no? See my cursor. Yes. Which number should I write? 2 Okay. Taurus. Should I write ascendant here? Ascendant तो लिखते हैं ना? We Yes. write ascendant. Lagna. 1 minute. थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ये थोड़ा हमको फॉन्ट साइज चेंज करना है। टू चेंज द फॉन्ट साइज, थोड़ा लाइव रहता है तो ये प्रॉब्लम होता है कभी कभी। टू चेंज द फॉन्ट साइज, just give me a few seconds. Okay. ठीक है, असेंडेंट हमने लिख दिया। ठीक है, असेंडेंट है फर्स्ट। असेंडेंट लिखा जाता है, you can write ascendant, lagna or anything. अभी numbers are more important. This is understood, that we have all understood कि यहाँ पे कौन सा नंबर लिखेंगे, यहाँ बताइए। 2 2. Why 2? as Taurus is the second sign. Oh no, Taurus is not the second sign. Ascendant is 2. Ascendant is Taurus, and Yeah. Taurus is represented by which number? 2 Okay. तो यहाँ हम फिर कौन सा लिखेंगे नंबर? 3 3. क्या है 3? What is 3? Gemini. जेमिनाई और जेमिनाई या मिथुन, जिसको हिंदी में, इंग्लिश हिंदी दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा। साउथ में मे बी हिंदी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर, बट पीपल इन नॉर्थ हिंदी भी याद कर लीजिएगा। साउथ इंडियन लैंग्वेज तो नहीं आती है मुझे,
हाँ, यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ 3 के बाद कर्क, कैंसर। 4 लिखेंगे, कैंसर। बट आर वी गोइंग टू राइट कैंसर? लिखेंगे हम क्या? No. कैंसर नहीं लिखेंगे, बिकॉज नहीं लिखा जाता है। ओके, इट इज नॉट टू बी रिटन। यहाँ क्या लिखेंगे? Leo, 5. कोई और भी बताएगा प्लीज? है कोई और भी बताएगा? नॉट ओनली जो लोग बोल रहे हैं वो लोग नहीं बताएंगे, और कोई बताएगा? जागृति बताइए, ये आप जागृति की यहाँ क्या लिखाएगा? 6 Virgo. नहीं, जिससे पूछ रहा हूँ वही बताएगा। जागृति जी बताइए, यहाँ पर क्या लिखा है? कौन सा नंबर लिखाएगा? है नहीं क्या? जागृति जी है नहीं शायद। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मैं तो देख नहीं सकता हूँ, मैं सबको स्क्रीन से गायब कर देता हूँ। एनीवे, चलिए यहाँ पर वर्गो बोला ना आपने? किसी ने वर्गो बोला ना? क्या नंबर है? नंबर 6 6। विच, अच्छा ओके, वो मैं पूछूंगा बाद में। चलिए यहाँ क्या लिखेंगे? 7 व्हाट इज 7? व्हाट इज 7? तुला लिब्रा। ओके, तुला तुला, तुला और लिब्रा। ओके, गुड। यहाँ क्या लिखेंगे? 8 वृश्चिक स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो। नाइन। यहाँ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, गुड गुड। यहाँ एक्वेरियस, नंबर 11, ओके, ठीक है। तो नाउ ये हमारा, ये हमने जोडियक साइंस को, जोडियक साइंस से हमने पॉपुलेट कर दिया। नाउ इफ आई आस्क यू बिफोर प्रोसीडिंग, इफ आई आस्क यू कि इस जातक की, नेटिव की, या इस आदमी की, औरत जो भी हैं जिनकी जन्म पत्री है, उनके लग्न क्या है, तो व्हाट विल यू से? लग्न क्या है? टॉरस टॉरस या वृषभ लग्न में पैदा हुए हैं। ठीक है, हम बोलते हैं इनको वृषभ लग्न में, या लग्न में, किस लग्न में पैदा हुए हैं, तो ये टॉरस या वृषभ लग्न में पैदा हुए हैं। कैन समबडी टेल मी कि इनका 10th हाउस क्या है? 10th हाउस इनका कौन सी राशि है? 10th हाउस एक्वेरियस, सैजिटेरियस, सैजिटेरियस नहीं है 10th हाउस। कुंभ हाँ, एक्वेरियस, कुंभ कुंभ है, कुंभ no, that is where the one देखिए, 10th house, somebody said Capricorn. Capricorn is the 9th house. Okay, ये 10, deliberately I asked 10th house. This is the confusion हमको शुरू में होता है। ये 10 को देख के हम 10th house बोल देंगे, नहीं। हम आपसे पूछ रहे हैं, I am asking you which राशि constitutes his 10th house. So you ought to know where the 10th house in any horoscope lies. Which this khana, this diamond shape, or this triangle, which represents the 10th house. तो क्या है 10th हाउस में? कौन सा जोडियक साइन है या राशि है? एक्वेरियस, एक्वेरियस। आप यूं देखिए, शुरू में आपको गिनना पड़ सकता है। 1 प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आ जाएगा। आपको 10th हम पूछ रहे हैं तो आप यहाँ से गिनना शुरू कर दीजिए। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज हाउ इन द बिगिनिंग, यू नो, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नाउ अब इनका 5th हाउस में क्या है बताइए? 5th हाउस में कौन सा जोडियक साइन है या राशि है? जोडियक साइन एंड राशि, हिंदी में राशि बोलते हैं, इंग्लिश में जोडियक साइन। 5th हाउस में कौन सी इनकी राशि है? लियो, गलत। कन्या, लियो नहीं, कन्या वर्गो
वर्गो। देखिए आप फिर आप कंफ्यूज कर गए, जहां 5 लिखा है इट डज नॉट मीन कि ये 5th हाउस है, ये 4th हाउस है, यहां से काउंट करना है आपको। इनके 4th हाउस में, इनके 4th हाउस में लियो है और इनके 5th हाउस में ये वर्गो है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू सिंक्रोनाइज इन योर माइंड, यू नो। या अगर ये असेंडेंट, अगर एरीज होगा देन एवरीथिंग विल बी द सेम। एरीज असेंडेंट अगर होगा तो सब फिर जो आप बोलेंगे वो ना 5 का 5 5 फिर यहाँ चला आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको, ये माइंड को सिंक्रोनाइज करना है, ये आपको इम्प्रिंट कर लेना माइंड में दैट दिस इज द फर्स्ट हाउस, इट विल नॉट बी रिटन एनीवेयर, दिस इज द सेकंड हाउस एंड द नंबर अपीयरिंग in whichever house that we are talking about. We suppose we are talking about the 7th house. Which number is appearing in the 7th house? बताइए, which number? 8. 8. What does 8 stand for? Scorpio. Scorpio. So the 7th house is Scorpio. So now we have populated, you know, our chart with the, we have populated our chart with the zodiac signs, with the rashis. हमने राशियों के नंबर भर दिए हैं चार्ट में। So now we know that this person was born in Taurus sign. So the horoscope will look like this as far as, you know, the rashis are concerned. Now what do we have to do next? Next हमें क्या करना है? ये राशि तो हमने भर दी, next हमें क्या करना है? Filling the planets. प्लैनेट्स को हमको प्लेस करना है। देखिए प्लैनेट्स के सामने हमने, ये आपको मिलेगा कहाँ से? देखिए अभी तो सारा कुछ कंप्यूटर में मिलता है ना, यू डोंट हैव टू बॉदर, बट स्टिल एज एन एस्ट्रोलॉजर हमको कभी अगर करना पड़ गया तो हमको मालूम होना चाहिए। तो ये इनके बर्थ के टाइम में दीज वर द प्लैनेट्स, और वो कौन से राशि में थे ये हमने सामने लिख दिया है। ओके, नाउ यू टेल मी, मैं ऑर्डर में नहीं पूछूंगा, इनका जुपिटर बोलिए कहाँ जाएगा? ये देखिए लेफ्ट साइड में दिया हुआ है ये इनका जुपिटर। टेल मी वेयर विल जुपिटर हम कहाँ लिखेंगे? लग्न में। अरे ये क्या हो गया, एक मिनट। ओके नाउ टेल मी उनका, one second, just 1 second, okay, just hold it. हाँ, जुपिटर कहाँ जाएगा इनका बताइए? Where will Jupiter? Ascendant. Ascendant. Why? Because ascendant represents Taurus. Taurus, and Taurus is number 2. So यहाँ पर हम जुपिटर को यहाँ हम प्लेस करेंगे, ठीक है। We will write here जुपिटर हमने यहाँ लिख दिया। ओके, सो वी आर डन विद जुपिटर। सन कहाँ जाएगा इनका बताइए? सन 12th हाउस में। 12th हाउस में क्या, कौन सा है, कौन सी इनकी राशि है? मेष। मेष। नंबर क्या है मेष का? 1। 1 सो wherever 1 is written that is 12th house। एकदम जय बताया आपने, बहुत बढ़िया बताया आपने, बहुत अच्छा। यहाँ पे जाएगा सन। ओके, सो वी राइट सन ओवर हियर। ओके, बताइए मून कहाँ जाएगा? Which house will moon go to? Which house? सो बता दो। हाँ बताइए। 9th. हाँ 9th house. 9th house। 9th house में Yes, 9th नंबर house. लिखा हुआ है? Number 10. हाँ 10. Number 10. नंबर 10। ओके, सो मून यहाँ आएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। मून यहाँ आएगा। ओके, मार्स कहाँ जाएगा?
मार्स फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में। ओके, मार्स हो गया। मरकरी बताइए कहाँ जाएगा? 12th house. हाँ, 12th house. 12th हाउस में। मरकरी हो गया। वीनस कहाँ जाएगा? 11th हाउस। ठीक है, जुपिटर हमने प्लेस कर दिया है। वेयर विल सैटर्न गो? 5th हाउस। राहु? नाइन्थ हाउस। केतु? 3rd हाउस। 3rd हाउस। ओके, अभी हमें have we placed all the planets or not? We have to count how many planets, कितने हो गए? 9 होने चाहिए, so we will count. मार्स से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So this we have populated our horoscope. ये हमारा हॉरोस्कोप तैयार हो गया। ठीक है, असेंडेंट की डिग्री यहाँ हम लिख सकते हैं। अभी उसका डोंट पे टू मच अटेंशन टू इट, मैं लिख देता हूँ 5.49। ये डोंट पे टू मच अटेंशन टू इट, उसको हम बाद में समझेंगे इसका क्या मतलब होता है। तो दिस यू नो दिस इज आवर हॉरोस्कोप। ये पॉपुलेट हो गया हमारा हॉरोस्कोप। तो अभी इसको समझने के लिए क्या है, व्हाट हैव वी यूज्ड? वी हैव यूज्ड ऑल द 12 राशिज, ओके, एंड वी हैव यूज्ड द 9 प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये हमें जो है ये दिस इज पर्टिकुलर्स फ्रॉम द पंचांग, जिसको अंग्रेजी में एफेमेरिस बोलते हैं, उसमें हमें ये ऑन अ डेली बेसिस मिलता है। आपको इसकी आवश्यकता नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब एवरीथिंग इज रेडीमेड, यू नो, बिल्कुल पका पकाया खाना मिलता है। जैसे ये रेसिपी से आपको खाना नहीं बनाना पड़ता है, ये खाली प्रैक्टिस के लिए है। सिंस यू आर एन एस्ट्रोलॉजर यू शुड नो, अदरवाइज तो इवन इफ यू डोंट नो दिस, तो आप कंप्यूटर से जनरेट करके आप यू कैन बिकम एन एस्ट्रोलॉजर, लेकिन वो फिर आधे कच्चे एस्ट्रोलॉजर आप रह जाएंगे। कोई टुमारो इफ सम स्टूडेंट आस्क्स यू और योर क्लाइंट आस्क्स यू, सर कैसे किया आपने, क्या किया, देन यू शुड नो। ओके, तो हम लोगों ने तो खैर वी हैड लर्नड एवरीथिंग मैनुअली, इसीलिए इट्स इजियर फॉर मी टू टीच यू आल्सो। बट देन मैनुअल डेज में इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत टफ था। इतनी आसानी से हम नहीं बना पाते, मतलब हमको एक हॉरोस्कोप बनाने में आप समझ जाओ मैनुअली पूरा एक दिन लगता था, पूरा 1 डे लगता था। एंड देयर वर ऑलवेज चांसेस ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक बिकॉज़ एवरीथिंग हैड टू बी कैलकुलेटेड। 2-3 किताबें होती थी, एक पंचांग होता था, फिर एक रैफल के टेबल्स ऑफ हाउसेस होते थे, एंड देन फिर वो सयाना सिस्टम, निरायना सिस्टम, उसको जोड़ना घटाना, it was a lot of hassle. Okay, and then we had to calculate the महादशा अंतरदशा, everything was done manually. तो अभी जो है ये खर्च आपको ये नहीं करना होगा, ये आपको खाली समझना है। अभी ये आपके सामने हॉरोस्कोप आ गया, अभी इससे इसी के बेसिस पर हम प्रेडिक्शंस करते हैं। ठीक है, अब हम वो अगले 3-4 क्लासेस में हम बेसिकली देखेंगे कि प्रेडिक्शंस में क्या इन्वॉल्व होता है, फर्स्ट हाउस से क्या क्या देखा जाता है, सेकंड हाउस से क्या क्या देखा जाता है, थर्ड हाउस से क्या क्या देखा जाता है, फोर्थ से क्या देखा जाता है, फिफ्थ से। एवरी हाउस यू नो रिप्रेजेंट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, your certain you know body parts,
सर्टेन आपके रिश्तेदारों को, सारा कुछ ये वो हम पढ़ेंगे आगे. एंड इन इन दीज प्लैनेट्स दे synchronize, they combined with wherever they are placed in the first house and in the Rashi that they are placed to give results. So this is a fascinating science. ये जो जहाँ कैसे planet आ गया, जो place हो गया, इसी पर अब सारा हमारा जो है ना पूरा prediction, ये इसकी life की जो है, ये इसकी life की जो है ये कहानी है. ये सारी इसकी किताब जो है, इसकी जिंदगी इस 12 घर और ये 9 ग्रह, ठीक है, और 12 राशियों के थ्रू हम प्रेडिक्ट करते हैं. तो दिस इज हाउ वी डू इट. आप थोड़ा सा इसको बस ये है प्रैक्टिस कीजिएगा. आई कैन सेंस दैट अभी थोड़ा सा आप लोग अभी कल एक क्लास होगा, उसके बाद 4 दिन का गैप है. उसमें आई वांट यू ऑल टू नो, इसको एक कागज पे खींचिए और ये इमेजिनरी कुछ भी बिठाइए, बट वो चीज दिमाग में सिंक्रोनाइज कीजिए कि 11 लिखा है तो इट इज नॉट द 11th हाउस. 11, if 11 is written here, then it is not the 11th house. This will always be the 10th house only. Okay, if 12 is written here, it is not the 12th house. It is the 11th house, and it will, this khacha, this triangle here placed here will always be the 11th house in any horoscope. Any number can be written here, ठीक है, depending on किस लग्न में उनकी पैदाइश होती है. तो दिस इज द पार्ट दैट ये आप समझ तो गए होंगे, समझ गए हैं आप. प्लैनेट्स भी अब आप प्लेस कर लेंगे, बट आपको ये वाला खाली ये सिंक्रोनाइजेशन दिमाग में, आपको दिमाग को वो थोड़ा सा ट्यून करना पड़ेगा. दिस इज, ये सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं. हाँ, of course practice, and you have to mug up as I told you. I don't know how many of you have learned. सभी लोगों ने याद कर लिया कि नहीं 1 to 12 rashis. I hope all of you have learnt it by heart. 1 to 12 rashis, 1 is Aries and 2 is Taurus, etc., etc. सबने याद कर लिया है, hopefully. And the 9 planets in the order that I had, in the order that I had told you to learn it. This is not the order. ऑर्डर वो पहले वाले स्क्रीन में था, जो कल के वीडियो में, आज के वीडियो में मिलेगा, क्योंकि हमने रिफ्रेश करने के लिए कल का वो ग्राफिक खोला था आपके सामने. तो ये आज का लेसन था, मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा था. तो इट इज वेरी सिंपल सो फार, बहुत सिंपल है. यहाँ तक हम पहुंचे हैं. एक और ग्राफिक हमने छोटा सा रखा है, बिकॉज इतने में तो अभी क्या टाइम हुआ, अभी तो टाइम ही नहीं हुआ, अभी तो 15-20 मिनट बाकी हैं. एक और ग्राफिक है, इसको अगर आप लोग if everybody is got the hang of this, if everybody is understood, then I'll go to the next graphic. इसमें कोई क्वेश्चन है, एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? ऑल्दो इसमें कुछ भी नहीं है, there's बहुत कुछ इसमें कंसेप्चुअल नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट द प्रेडिक्टिव पार्ट. बट अगर साउथ इंडियन चार्ट अभी नहीं, हाँ जी, सॉरी, साउथ इंडियन चार्ट अभी नहीं पढ़े. नहीं, साउथ इंडियन चार्ट से हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं करेंगे. साउथ इंडियन चार्ट से हम लोग केपी करेंगे. जब आप हमारे साथ केपी सीखेंगे तब हम केपी करेंगे. साउथ इंडियन चार्ट हम नहीं करेंगे. आई डोंट वांट, हम आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं. हम एक ही चलेंगे, हम इसमें चलेंगे. कौन पूछ रहे थे अभी? हरीश पूछ रहे थे क्या? अमित श्रीवास्तव. अमित श्रीवास्तव नहीं, अमित जी, अभी हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है ना, हम लोग नॉर्थ इंडियन चार्ट से करेंगे. और जब आप केपी हमारे साथ करेंगे, उसमें हम आपको साउथ इंडियन चार्ट से सिखाएंगे. है कुछ भी नहीं है इसमें. देखिए, मैं आपको बोलिएगा तो बता दूंगा, बट आई डोंट वांट टू अननेसेसरली कंफ्यूज यू. लेट्स स्टिक टू द नॉर्थ इंडियन चार्ट. ओके, साउथ इंडियन चार्ट आप कहेंगे, आप अलग से मैं आपका क्लास लेकर के आपको बता दूंगा. अगर आप चाहेंगे तो अलग से भी क्लास ले लूंगा मैं. यू कैन डू इट ऑन योर ओन. देखिए, ये हमने यहाँ पर दिया हुआ है. देखिए इसमें क्या फर्क है. चलिए, अब आप आ गए हैं तो मैं इसमें आ जाता हूँ एक बार. दिस इज द साउथ इंडियन चार्ट. इसमें देखिए, ये हाउसेज आर फिक्स्ड. दिस विल ऑलवेज बी द फर्स्ट हाउस. दिस विल ऑलवेज बी द फर्स्ट हाउस. ठीक है, दिस विल ऑलवेज बी द सेकंड हाउस. साउथ इंडियन चार्ट में ये थोड़ा सा उल्टा है. ये साउथ इंडियन चार्ट में थोड़ा सा ये उल्टा है. ये यहाँ पे ये हाउसेस फिक्स्ड हैं. चलो मैं आपको दिखा देता हूँ.
नहीं ठीक है, आपको मैं कर देता हूँ, आप अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग सब समझ लीजिए। इफ यू वांट टू डू इट ऑन योर, प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। देखिए ये सेम यहाँ पर ये जो है ये दिस इज दी नॉर्थ इंडियन, ये साउथ इंडियन। देखिए इसमें हाउसेस फिक्स्ड है, दिस विल ऑलवेज बी द लग्ना, ओके, दिस विल ऑलवेज बी द लग्ना। साउथ इंडियन चार्ट में स्टार्टिंग फ्रॉम हियर द राशिज आर फिक्स्ड, राशिज आर फिक्स्ड। एरीज, ठीक है, ये एरीज है, यहाँ ये वाला खाना एरीज है, तो ये एरीज ही रहेगा साउथ इंडियन चार्ट में। देन इट फॉलोज, नंबर नहीं लिखा रहेगा यहाँ, ठीक है, ये कुछ नहीं लिखा रहेगा। यू हैव टू नो दैट दिस इज एरीज, दिस इज टॉरस, दिस इज जेमिनी, दिस इज फिक्स्ड। तो जो भी लग्न होगी, जो भी लग्न होगी, लग्न इज ऑलवेज द फर्स्ट हाउस। तो इन अ साउथ इंडियन चार्ट, इन अ साउथ इंडियन चार्ट, जैसे इसमें लग्न कौन सी है बताइए, विच इज द लग्न, राशि कौन सी है लग्न की, आप लोग बताइए राशि क्या है लग्न की? टॉरस। टॉरस कहाँ है यार किसमें? इस नॉर्थ इंडियन चार्ट आपके? इसमें इसमें असेंडेंट क्या है, असेंडेंट की राशि क्या है? अभी तो बटन। हाँ, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। सो इन साउथ इंडियन अच्छा स्कॉर्पियो इज गोइंग टू बी फिक्स्ड, स्कॉर्पियो रिमेन हियर। इसको हम क्या करेंगे, इसमें इसमें यूं लिखते हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं। क्या हो रहा है यार, एक मिनट, जस्ट वेट, ओके। देखिए ये लग्न है ना, तो यहाँ लग्न इज ऑलवेज फर्स्ट हाउस, तो यहाँ हम स्कॉर्पियो है ना, स्कॉर्पियो पे वी विल राइट रोमन नंबर 1 नीचे आ जाएगा, वो थोड़ा सा नीचे आएगा, तो रुकिए, रोमन नंबर 1। सो दिस जहां 1 लिखा रहेगा साउथ इंडियन चार्ट में, देखिए स्कॉर्पियो यहाँ, ये साउथ स्कॉर्पियो इज फिक्स्ड इन दिस विल बिकम द लग्ना इफ दिस इज द चार्ट, सेम चार्ट अगर हम यहाँ देख रहे हैं। फिर यहाँ पर सेकंड हाउस क्या है, सैगिटेरियस है, ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे रोमन 2, ठीक है, रोमन 3, ठीक, सॉरी, रोमन 3, this will become Roman 4, this will become Roman 5, this will become Roman 6, this will become Roman 7, this will become Roman 8, this will become Roman 9, 10, 11, ठीक है ना। इसमें देखिए राशियां फिक्स्ड हैं, ये खाना एरीज का होगा, ये हमेशा टॉरस का होगा, लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर अगर स्कॉर्पियो लग्न है तो वेरेवर स्कॉर्पियो यहाँ नंबर 1 लिखा रहेगा, ठीक है, नंबर 1 लिखा रहेगा। आई विल शो यू अ लाइव चार्ट देन इन दैट केस, अगर आप लोग, बट वी आर गोइंग टू स्टिक टू द नॉर्थ इंडियन चार्ट फॉर स्टडिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी।
अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए क्या हो रहा है। ये नॉर्थ इंडियन चार्ट आता नहीं है, ये खुलता क्यों नहीं है भाई? समथिंग रॉन्ग विथ ट्रू एस्ट्रोलॉजी वाला, क्यों नहीं खुलता है? इट्स वेरी स्ट्रेंज। ट्रू एस्ट्रोलॉजी देखिए, एक मिनट जरा सा। ट्रू एस्ट्रोलॉजी खुल जाएगा तो बताइएगा जरा। तो नॉर्थ इंडियन ऊपर है। हाँ नहीं ठीक है, वो तो चेंज कर, खुल गया है ना, Yes, sir. वो तो हम चेंज कर देंगे, वो तो मैं चेंज कर दूंगा। ये तो साउथ में चेंज कर देंगे हम। क्या हो रहा है भाई? आ गया सर राशि का। अच्छा आ गया। देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए दिस इज, आई टोल्ड यू, लिखा नहीं रहेगा। ये एरीज होगा, ये टॉरस होगा, ये जेमिनी है, ये कैंसर है, ये लियो है, ठीक है। तो इसमें आपको देखिएगा जहां 1 लिखा रहेगा ना, देखिए 1 लिखा हुआ है, ये लग्न है, सो स्कॉर्पियो लग्न है। ये आपको याद रखना होगा कि ये स्कॉर्पियो है। नंबर 2 लिखा रहा होगा, सेकंड हाउस सैजिटेरियस। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वन एंड द सेम थिंग। प्लैनेट्स की प्लेसमेंट वगैरह सब उसी तरह आएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसीलिए मैं दोनों अभी नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, इसीलिए अभी मैं उसको, आई एम नॉट गोइंग टू ड्वेल ऑन इट एनी मोर, ठीक है। ओके देखिए नाउ, आप लोग राशियों का नाम याद कर लिया होगा आपने, Yes, sir. होपफुली विथ नंबर्स आपने याद कर लिया होगा, और प्लैनेट्स का नाम आप लोगों ने याद कर लिया होगा, प्लैनेट्स एंड राशि। इंडियन एस्ट्रोलॉजी में वैदिक हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी, जो भी बोलें उसको, जो राशियां होती हैं ना उसके स्वामी होते हैं। 12 राशियां जो होती हैं सबके स्वामी होते हैं। 12 राशियों के, और लॉर्ड जिसको बोलते हैं, और ओनर। हर एक राशि का कोई ओनर होता है। जैसे एरीज राशि का ओनर जो है मार्स है, टॉरस राशि का ओनर जो है वीनस है। वीनस इज द लॉर्ड ऑफ टॉरस या वृषभ। शुक्र वृषभ राशि का स्वामी है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वीनस इज द लॉर्ड ऑफ टॉरस। ये आपको ये भी याद करना होगा। ये हमने टेबल एक बना दिया है, टेबल एक बना दिया है। देखिए इसमें हमने नेम ऑफ प्लैनेट लिखा है, नेम ऑफ प्लैनेट लिखा है, ओनरशिप ऑफ राशिज। ये प्लैनेट्स जो हैं ये किन किन राशियों के ये स्वामी हैं, ठीक है, किन किन राशियों के स्वामी हैं, और उनमें मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है इनकी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट in the astrology, the variant of astrology that we are studying, that is the systems approach. Systems approach सारा मूल त्रिकोण राशि के ऊपर पिवट करता है। अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, हम बताएंगे क्या मूल त्रिकोण राशि का मतलब क्या है, वो हम बताएंगे। यहां से सिस्टम्स अप्रोच की हमारी शुरुआत होती है। और हर एक प्लैनेट जो है अगर किसी पर्टिकुलर राशि में अगर हॉरोस्कोप में पाया जाता है तो वो उच्च का बोला जाता है या नीच का बोला जाता है। एग्जॉल्टेड उच्च या डेबिलिटेटेड नीच का बोला जाता है। नाउ दिस इज नाउ अगेन, ये आप लोगों को दिस यू हैव टू, इसको याद करना होगा, ठीक है। ये 9 राशिज हैं, एंड विच आर दी, सॉरी 9 प्लैनेट्स हैं, एंड विच आर दी राशिज दैट दे ओन। ये ओनरशिप हमने दिया है। देखिए केतु और राहु कोई किसी को ओन नहीं करते हैं,
ठीक है। केतु और राहु की कोई ओनरशिप नहीं होती है, तो हमने यहाँ नन लिख दिया है। केतु और राहु अगर आप नीचे देखेंगे तो हम नन लिखा है, दे डोंट ओन। केतु और राहु ये किसी भी राशि के स्वामी नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, ऑर्डर देखिए वही है जो मैंने आपको बताया था, जिस ऑर्डर में आप लोग याद करने की कोशिश कीजिएगा। 9 planets in a given particular order I had asked you to remember. So Ketu does not own any zodiac sign or any rashi. Next is Venus. Venus is the lord of 2 rashis. It is the lord of Taurus, Vrishab, जिसका कि नंबर 2 है, ब्रैकेट में नंबर भी लिख दिया हमने आपके कन्वीनियंस के लिए। एंड वीनस इज द ओनर और द लॉर्ड ऑफ लिब्रा ऑल्सो। लिब्रा यानी कि हिंदी में लिब्रा को क्या बोलते हैं? तुला। तुला। सन। Now sun and moon they only own 1 rashi each. The other planets they own 2 rashis. सन का जो है ओनरशिप है लियो का। सिंह, सन जो है सूर्य सिंह का स्वामी होता है। सन इज द लॉर्ड और द ओनर ऑफ लियो, रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 5। मून ओन्स कैंसर और नंबर 4। चंद्रमा कर्क का स्वामी होता है, जिसका नंबर 4 होता है। Mars owns Aries, number 1, and Scorpio, number 1, and Scorpio number 8। यानी कि मंगल मेष का स्वामी होता है, जिसका नंबर 1 है, और मंगल वृश्चिक का स्वामी होता है, लॉर्ड होता है, ओनर होता है, जिसका नंबर 8 है। राहु किसी भी राशि का स्वामी नहीं होता है। जुपिटर यानी कि गुरु, जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ सैगिटेरियस, नंबर 9, and Pisces, number 12. Saturn owns Capricorn, number 10, and Saturn owns Capricorn, number 10, and Aquarius, number 11. शनि मकर का स्वामी होता है, नंबर 10, और कुंभ का स्वामी होता है, जो कि नंबर 11 से रिप्रेजेंट होता है। मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ जेमिनी, नंबर 3, एंड वर्गो, नंबर 6। ये आपको याद करना पड़ेगा, चॉइस नहीं है आपके पास, यू हैव टू, ठीक है ना, आपको याद करना ही होगा, इसमें कोई आपके पास चॉइस नहीं है, ठीक है, ये आपको याद करना होगा। अच्छा देखिए, मूल त्रिकोण राशि क्या होती है? हर एक ग्रह, हर एक प्लैनेट, एवरी प्लैनेट you know that owns 2 rashis. Out of that, one of the rashis is called the mool trikon rashi of that planet. Like Venus owns Taurus and Libra, शुक्र जो है वृषभ और लिब्रा का स्वामी है। इन दोनों में शुक्र की मूल त्रिकोण राशि जो है लिब्रा है, खाली नंबर हमने यहाँ लिख दिया है, यहाँ चूंकि यहाँ लिखा हुआ है लिब्रा है। सन एक ही राशि को ओन करता है, लियो, वो उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। चंद्रमा कैंसर को ओन करता है, वो उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। मंगल एरीज और स्कॉर्पियो को ओन करता है, तो इन दोनों में से एरीज यानी कि मेष मंगल की मूल त्रिकोण राशि होती है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैं समझाऊंगा अभी आप खाली आप लोग मूल त्रिकोण का कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल लीजिए। जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि जो है सैगिटेरियस है, 2 राशियों को ओन करता है, बट सैगिटेरियस उसकी मूल त्रिकोण राशि है। सैटर्न की मूल त्रिकोण राशि जो है वो है एक्वेरियस, ठीक है, 2 ओन करता है लेकिन एक्वेरियस है। और मरकरी यानी कि बुध की मूल त्रिकोण राशि वर्गो है, नंबर 6, ये 2 को ओन करता है, 3 और 6 को, जेमिनी और वर्गो को, तो 6 नंबर उसकी जो है वर्गो इसकी मूल त्रिकोण राशि है। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। Now all planets, they are, if in a horoscope they are placed in a given, every planet has to be placed in some rashi. तो किसी राशि में अगर वो
किसी पर्टिकुलर राशि में प्लेस्ड अगर होते हैं तो वो या तो उच्च के माने जाते हैं या नीच के माने जाते हैं। जैसे केतु, केतु किसी का स्वामी नहीं है, लेकिन केतु अगर 8वें नंबर में प्लेस्ड है, यानी कि स्कॉर्पियो में अगर प्लेस्ड है, तो वो उच्च का माना जाता है, एग्जॉल्टेड, उच्च। उच्च का मतलब इसको आप जनरल टर्म में समझिए कि अच्छा माना जाता है, ठीक है। स्ट्रेंथ बढ़ती है प्लैनेट की अगर वो अपने उच्च राशि में होता है। और उसका ऑपोजिट उसमें से 6 घटा दीजिए, जब टॉरस में केतु होगा यानी कि वृषभ में, तो वो नीच का माना जाएगा, यानी कि वो कमजोर हो जाता है, वो अच्छे फल नहीं देगा। शुक्र, शुक्र जो है इट डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द मूल त्रिकोण और एनीथिंग। बस ये शुक्र जब है, शुक्र जो है अगर पाइसीज में रहेगा मीन में, तो वो उच्च का माना जाता है, और वर्गों में रहेगा तो वो नीच का माना जाता है। सन, सन जब एरीज में रहेगा 1 नंबर की राशि में, तो वो उच्च का माना जाता है, और जब वो लिब्रा में चला जाएगा तो सन नीच का माना जाता है। चंद्रमा, टॉरस में उच्च का 2 नंबर में, और 8वें नंबर में अगर आ गया अगर स्कॉर्पियो में, तो नीच का माना जाता है। मंगल 10 नंबर में अगर बैठा हो यानी कि कैप्रिकॉन में, तो वो उच्च का माना जाता है, और 4 में चला गया तो वो नीच का माना जाता है। राहु, टॉरस में राहु उच्च का माना जाता है, और 8 नंबर में यानी कि स्कॉर्पियो में नीच का माना जाता है, ठीक है। आजकल आजकल गोचर में आजकल राहु उच्च का है, ठीक है। जुपिटर 4 नंबर में बैठेगा यानी कि कैंसर में, तो वो उच्च का माना जाएगा, और 10 नंबर में अगर वो बैठेगा यानी कि कैप्रिकॉन में, तो वो नीच का हो जाएगा। सैटर्न 7 नंबर लिब्रा में, सैटर्न जो है लिब्रा में या तुला में बैठेगा तो वो उच्च का माना जाएगा, और 1 नंबर में अगर आ जाएगा एरीज में, तो वो नीच का माना जाएगा। बुध, मरकरी अगर वर्गों में बैठेगा, वो उसकी अपनी राशि भी है, वर्गों में बैठेगा तो वो उच्च का माना जाएगा, और पाइसीज में यानी मीन में चला जाएगा तो वो नीच का माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ये टेबल आपको याद करना होगा। इसमें अगेन देयर इज नो शॉर्टकट, ठीक है। इसका आप लोग कल तो आपको मिलेगा ही, फोटो खींच लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। इसको बिना याद किए हम प्रेडिक्शंस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वी हैव टू रिमेम्बर, हमें याद करना ही पड़ेगा इसको। क्यों याद करना पड़ेगा? ये टेबल हमने दिखा दिया, इसमें कोई एक्सप्लेनिंग की हमें जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग इन दिस। आई मीन ये केपी हो या वैदिक हो, वैदिक का कोई भी वेरिएंट हो, ये दिस इज कॉमन इन ऑल द पद्धतिज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु वगैरह नहीं मानते, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में ये कॉमन है, ये आपको याद करना ही है। इसमें कहीं कोई शॉर्टकट की बात नहीं है। ये आप लोग देखिए, ये इसको फोटो खींच लीजिएगा, रख लीजिएगा, एक खाका बना लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। देयर इज नो शॉर्टकट। इसकी क्या आवश्यकता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इसको मैं खोलता हूँ फिर। अभी देखिए, वो टेबल जब आप याद कर लेंगे, तो अगर आपसे पूछेगा कोई कि भाई इनकी लग्न क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू गोइंग टू से? लग्न क्या है? ये टेबल खुल गया ना, ये वाला Taurus. टॉरस है। तो यू शुड नो कि हु इज द लॉर्ड ऑफ द लग्न इन दिस हॉरोस्कोप। वो टेबल आप याद करेंगे तब आपको मालूम होगा कि वीनस इज द लॉर्ड ऑफ द लग्न इन दिस हॉरोस्कोप, बिकॉज वीनस इज द ओनर ऑफ टॉरस। शुक्र जो है टॉरस का, वृषभ का स्वामी है। सो द लॉर्ड ऑफ द असेंडेंट इज वीनस। दैट यू हैव टू नो। वो टेबल याद करेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। सेकंड हाउस क्या है इनका? सेकंड हाउस इनका जेमिनी है। सो यू मस्ट नो हु इज द लॉर्ड ऑफ जेमिनी। याद कीजिएगा तो इट इज मर्क्यूरी, ठीक है। थर्ड हाउस इनका क्या है? थर्ड हाउस इनका कैंसर है। लॉर्ड ऑफ मून है। तो दिस यू हैव टू मग अप, याद करना है। देयर इज नो शॉर्टकट। ओके, नाउ
उच्च नीच भी हमने देखा। अगर आप देखेंगे उस टेबल से तो वीनस सिटिंग इन पाइसिस इन एनी हॉरोस्कोप इज एक्सॉल्टेड, यानी कि उच्च का है। तो इनके हॉरोस्कोप में वीनस जो है उच्च का है, और सन चूंकि एरीज सन भी का है अच्छा। तो सन भी उच्च का है। तो ये आपको ये चीजें, ये मगिंग अप पार्ट जो है ना यहाँ तक है, आज के लेसन तक ये मगिंग अप बाय हार्ट करने वाला, कंठस्थ करने वाला ये लेसन ये यहाँ तक है। दिस इज इसके बाद आई डोंट थिंक कुछ याद करने वाला रह जाएगा। उसके बाद फिर देन द कंसेप्चुअल थिंग्स विल स्टार्ट। ऑफ कोर्स थोड़ा आपको याद करना होगा, वो जब हम आएंगे कि फर्स्ट हाउस से क्या देखते हैं, वो आप नहीं भी याद करेंगे तो प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा कि सेकंड हाउस से हम देखते हैं, सेकंड हाउस से हम बैंक बैलेंस देखते हैं, स्टेटस देखते हैं, है ना। फोर्थ हाउस से हम क्या देखते हैं, मदर को देखते हैं, डोमेस्टिक पीस देखते हैं, एसेट्स देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, मकान देखते हैं। वो सब धीरे धीरे करके आपको याद आ जाएगा। बट ये प्लानिटरी जो है ना, प्लानिटरी, ये कौन किसका लॉर्ड है और कौन उच्च में है और कौन किसकी मूल त्रिकोण राशि है, वो आपको याद करना पड़ेगा। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। दिस इज अ मस्ट। कौन उच्च का है कौन नीच का है, तभी जो है आप प्रेडिक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ हाउसेस तो याद तो करना होगा वो, बट ग्रेजुअली जब हम प्रेडिक्शन में जाएंगे एक एक टॉपिक वाइज, तो फिर हम पढ़ेंगे तो वो आपको याद होता जाएगा कि प्रोफेशन देखना है तो मेनली हम 10th हाउस से देखते हैं, मैरिज देखना है तो 7th हाउस से देखते हैं। दैट विल कम, वो भी याद करने की चीज है। बट दीज फर्स्ट टू लेसन्स आज का, इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। तो है ही है, अंडरस्टैंडिंग इज दिस, you know, that this is the first house and the number written here is not the house, it is the rashi number। ये अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्चुअल है। बट बाकी 9 planets, 12 houses, 12 राशिज, उच्च नीच मूल त्रिकोण राशि, ये आपको याद करना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट, देन ओनली वी विल बी एबल टू प्रोसीड। ये आपको समझना होगा, उच्च नीच, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, स्पेशली इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। केपी में कृष्णमूर्ति जी नहीं मानते थे उच्च नीच को, ठीक है, एंड देयर आर मेनी कंट्रोवर्सीज उसको लेकर के। मैं थोड़ा मानता हूं कि केपी में भी उच्च नीच का अफेक्ट आता है, मे बी बहुत ज्यादा नहीं आता है, बट यस इट डज प्ले अ रोल, बिकॉज दैट हैज बीन माय एक्सपीरियंस, इट डज प्ले अ रोल। बट यहाँ पर दी पूरा एंटायर thing, entire Vedic astrology, especially that we are going to study, is based on Mool Trikon Rashis. That most important concept is the Mool Trikon Rashis, and Uch Neech to hai hai. And there are certain other concepts so hum dheere dheere hum padhenge. So these are some of the things that you have to get by heart. There is no shortcut. I am very sorry. ये मतलब some of you are very young and you यंग लोगों को याद करने में थोड़ी आसानी होती है, बट सम ऑफ यू यू नो नॉट माय एज, बट सम ऑफ यू आर थोड़ा सा, तो जितना उम्र होती है उतना ब्रेन थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा रिटेंशन की कैपेसिटी कम होती है। बट स्टिल एनीवे नन ऑफ यू आर ऑल दैट ओल्ड। जो जिनकी ज्यादा उम्र है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, याद कर लीजिए, दिस इज द टाइम टू डू इट, बट इफ यू अगर हमसे पूछिए कि मुझे अगर अभी कुछ कहा जाता है कि अब तुम कुछ याद करो, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, द ब्रेन इज नॉट एज यंग एज वी यूज्ड टू बी। अभी जैसे सम ऑफ यू द यंग स्टूडेंट्स और द पार्टिसिपेंट्स, दे वुड हैव ऑलरेडी मेमोराइज्ड इट, उनको याद हो भी गया होगा, इसी क्लास में ही हो गया होगा। सम ऑफ यू जिनको नहीं पता है, जिनको आप लोगों को आई एम श्योर कि जिन लोगों ने वैदिक किया हुआ भी है, उनमें से कई लोगों को मूल त्रिकोण राशि नहीं मालूम होगी। तो मूल त्रिकोण राशि, और क्योंकि दूसरे वेरिएंट्स में मूल त्रिकोण राशि पर उतना एम्फेसिस नहीं है, हमारे सिस्टम्स अप्रोच में मूल त्रिकोण राशि पर ही सारा बेस्ड है। तो इसलिए मूल त्रिकोण राशि तो याद कर लीजिएगा, उच्च नीच याद कर लीजिएगा, ये चीजें याद करने की हैं। If there are any more questions, बताइए, otherwise that's all I have for today.
Gradually the duration of the classes are going to increase. अभी इनिशियली 1 घंटे का क्लास कर रहे हैं, स्लाइटली जस्ट मोर देन 1 hour, बट ग्रेजुअली हम फिर 1.25 घंटा 1.5 घंटा, then the lessons become longer. Any questions? सर सिस्टम्स अप्रोच में राहु केतु को भी लेते हैं उसमें? हाँ, बहुत बहुत एकदम लेते हैं। सिस्टम्स अप्रोच में बिल्कुल लेते हैं राहु केतु को। बहुत इंपॉर्टेंस है राहु केतु की सिस्टम्स अप्रोच में। आप लोगों ने जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी किया है उसमें मूल त्रिकोण राशि के ऊपर कितना एम्फेसिस हुआ करता था? ऑल ऑफ यू हु हैव डन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, कोई खास इंपॉर्टेंस अलग से? और आर बोथ दी राशिज ट्रीटेड एट पार? दे आर ट्रीटेड एट पार ना, लाइक वीनस ओन टॉरस एंड लिब्रा, सो दोनों में वीनस के रिजल्ट दोनों का इक्वली देगा, या लघु पाराशरी में थोड़ा सा मानते हैं मूल त्रिकोण को। नहीं देखिए, है तो सारा ऑफशूट्स तो ये तो पराशरी ही है ना। मूल त्रिकोण राशि का कॉन्सेप्ट तो पराशर से ही आया है, बट उसके ऊपर उसका इम्पोर्टेंस और उसका रेलेवेंस जो है ना, वो जो है बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने, आप देखेंगे तो उसका रेलेवेंस नहीं है। दे ट्रीट बोथ द राशिज ऑफ अ प्लैनेट as the same, you know, the power for rendering results, giving results. They both the rashis of a planet, they are treated at par. Whereas हम जो पढ़ेंगे उसमें अब 2 राशियां हैं, जैसे वीनस की 2 राशियां हैं, टॉरस है और लिब्रा है, तो इन एनी गिवन हॉरोस्कोप लिब्रा से आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिलेगा वीनस का, ठीक है, टॉरस से उतना नहीं मिलेगा। वो है देयर आर कॉन्सेप्ट, उसको हम पढ़ेंगे, वी विल स्टडी दैट। तो ये है, ये थोड़े से डिफरेंसेस, ये त्रिकोण राशि आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। वो एवरी टाइम इन एवरी हॉरोस्कोप दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, मूल त्रिकोण राशि इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल, तो इसलिए आपको याद करना होगा। और उच्च नीच याद कर लीजिएगा, जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, अगर कुछ नहीं है फिर तो आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे। ओके, Right, sir. Thank you. Thank you, sir. बाय, गुड नाइट, गुड नाइट सर।